Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, khawateen and huzrat. Thank you so much for streaming us on Tamasha Dugout and watching us on Geo Super Live or probably Myco. But ladies and gentlemen, you're certainly watching Dugout. मुझे कहते हैं शहजाद हसान खान और लाहौर में एक बहुत ही अच्छी बसंत मनाने के बाद Dugout पे वापसी हो चुकी है मैडम महक खोकर की. Hello Mehak, how are you? I'm good, thank you very much. And I can see that you're in very high spirits as well. लगता है कि आप भी लाहौर से होके आए हैं जिस तरह की आपकी high मैं भी spirits गया है था, अभी. alhamdulillah. You know, I got a taste of my Basant as well. But I Yeah. think for now, Basant is actually going on the field of probably the 22 yards that we speak about, which is Yes. why the ICC Men's T20 World Cup 2026 is on in its full swing. Yes. But very quickly, before we move on towards that, how was your Basant? Actually, I would say कि जो बसंत वापस आई है पाकिस्तान में लाहौर में, I think it's honestly it's such a beautiful event और रंग बिरंगी और you know जहाँ पे you see colors everywhere in लाहौर, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त लाहौर में काफ़ी smog हो जाती है, तो वो रंग देखना it's very you know easing on the eyes, very pleasing on the eyes. लेकिन I think अगर safely you know it gets carried out, then I think it is one of the best things about Lahore. एग्जैक्टली मेरे ख्याल है बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ वो भी डग आउट के तवस्सुल से कि बेसिकली ये जो जिसको कहते हैं जश्न बहारा, Yes. ये बेसिकली सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है, ये बसंत इसलिए होती थी कि जब गंदम की कटाई होती थी फसलों की, तो एक मेला हुआ करता था उस वक्त के गाँवों में, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेट करते थे. बट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कम डाउन एंड सेलिब्रेट द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 व्हिच इज अंडर वे. सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आज हम किस हवाले से बात करेंगे. सो मैं गो अहेड. Yes, on my right, of course, we have the swing master. I think he needs no more introduction because आप लोगों को इनका पता ही है. It is none other than the dangerous and the sharp Suhail Tanveer. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? भाईजान मैं भी साथ ही. अस्सलाम वालेकुम. उनको भी कह कैसे हैं सुहेल भाई? ठीक है? शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. I hope that you do wonderfully well. And of course, on my left, on our left, in fact, it is someone जिनसे इनसे बेहतर तो T20 format को कोई जानता ही नहीं होगा. It is, or there's nobody better to talk about this format with other than the all-rounder Imad Wasim. Imad, कैसे हैं आप आज? अल्लाह का शुक्र है. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you all over here. So I think हम कल की गेम से शुरू करेंगे. सुहेल भाई और इमाद जो है महक यहाँ पर मौजूद थे और फॉर इंस्टेंस ऐसा ज़रूर लगा कि शायद नेपाल जो है इस वक्त इंग्लैंड के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है. लेट्स टेक अ क्विक लुक, यू नो, क्विक रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन तमाशा और माइको or Geo Super Live, ladies and gentlemen, on the dugout. Let's go. Let's take a good look as to what actually happened in between England and Nepal. So England obviously won the toss, opted to bat first, and while they were batting first, they made sure that they were going to score as much as they can against Nepal, and looked like as if they had a bit of difficulty. Harry Brook has been under quite a lot of heat, but it was, you know, Will Jacks who actually rose to the occasion. Only, you know, 16 or 18 deliveries, and he scored 39. Speaking wonderfully well about it, Jacob Bethel, you know, Imad spoke about it, 55, Harry Brook with 53, and then there was Will Jacks who actually were not out. You know, moving on towards Nepal, you know, Nepal, it looked like as if Lukesh could actually sail their boat, but towards the end, it was certainly a challenge for them to actually score those last 4 runs. And on the other hand, I think England bowlers were a little weaker, and Nepal, on the other hand, made sure that, you know, that they're going to strike back. But certainly it was England winning by 4 runs. So I think let's get started with that. So Suhail bhai, एसोसिएट नेशंस एक तो सबसे पहले बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, जैसा से हमें नजर आ रहा है. हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं, पिचेस भी अच्छी बनी है. बट हाउ डू यू सी इंग्लैंड एंड नेपाल्स डिबैकल? देखिए, पहले तो वर्ल्ड कप बहुत ही मज़े का हो रहा है. जो पहले लगता था कि एसोसिएट, पहले इनिशियली जब किसी भी आईसीसी के इवेंट के एसोसिएट के मैचेस होते थे तो ऐसे ही होता था, बोरिंग होंगे, पता होता था कि रिजल्ट क्या होना है. बट द गुड थिंग इज़ कि जितने भी एसोसिएट मेंबर्स ने अभी तक मैचेस खेले हैं, उन्होंने एक अच्छा शो पुट अप किया है रिगार्डलेस जो भी रिजल्ट आए हैं. कल के मैच की मेरे ख्याल में सबसे पहले तो क्रेडिट टू सैम करन के जिस तरीके से लास्ट ओवर हैंडलिंग, मतलब नर्व्स को कंट्रोल करना. 10 रन आजकल की क्रिकेट में, और जब आप स्पेशली अपोजिशन ने उससे पहले के 2 ओवरों में 35-40 रन किए हों, सो आई थिंक ए फुल क्रेडिट टू हिम कि उसने अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखा. सेम टाइम मेरे ख्याल में नेपाल या जितनी भी एसोसिएट नेशंस हैं उनके लिए रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे कि जब आपको लगने लगता है ना, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग कि वी कैन विन इट, तो वहाँ आपकी नर्व्स बटरफ्लाइज, यू नो, वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं. जब आप मैच के शुरू होता है या दरमियान में जब आपको लग रहा होता है कि रिजल्ट दूर है, तो यू प्ले फियरलेस. जब आपको लगता है कि नाउ यू कैन, यू नो, स्निच द विक्ट्री, वहाँ पे मेरे ख्याल में जाके नर्व्स आ जाती हैं. इसलिए 6 बॉलों पे 10, हमारे वो मैच में फ़हीम अशरफ का कैच छूटना, सो ये सारी चीज़ें. बट रिगार्डलेस आई थिंक इट वाज वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट. वी ऑल एंजॉयड इट.
اور نیپال کے لیے لاٹ آف پازیٹیو پہلا میچ وہ کھیل رہے تھے اور اتنی بڑی ٹیم کے اگینسٹ اس طرح کا شو پٹ اپ کرنا آئی تھنک گوئنگ ڈیپر ان دا ٹورنامنٹ دے ول ڈو بیٹر. اور کل میں نے کہا تھا کہ یہ آنے والے وقتوں کی افغانستان ہوگی. ڈیفینیٹلی. اچھا اب عماد کی طرف چلتے ہیں. جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ جو نیپال کی ٹیم ہے انہوں نے جس طرح کھیلا تھا, آف کورس سیم کرن آن دیٹ لاسٹ اوور, آئی تھنک ایکسپیرینس دے کیم ان ٹو پلے, جس طرح انہوں نے پریشر کو ہینڈل کیا, اپنی ٹیم کو جتوایا, جس سے سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے obviously کہ انگلینڈ جیتے گا. تھوڑا سا نیپال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بینگ آف کورس این ایسوسیٹ ٹیم, اور ان کی دے بیک بائی آف کورس جو نیپال پریمیئر لیگ بھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی مشہور ہے, ان کی فین فالوئنگ جو نیپال کی ہے وہ اٹس کریزی. آئی تھنک انڈیا کے بعد نیپال ہی ہے جو ان کی فینس اتنے پیشنیٹ ہے کرکٹ کے بارے میں. تو نیپال آئی تھنک واز ایبسلیٹلی ایکسٹراڈنری ان دیٹ میچ, اینڈ واٹ وڈ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیم؟ لک اتنا کلوز آنا ہی ان کی وکٹری ہے. اور جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ جو ڈفرینس بٹوین ایسوسیٹ ٹیمز اور ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے کہ ان کو فنش کرنا آتا ہے, تو وہ نروز پہ قابو پانا آئی تھنک یہ سب سے بڑی, ایک بار اگر کوئی ایسے حل ہو جائے نا, کام ہو جائے, آپ فنش لائن میں پار کر لیں, اس کے بعد پھر آپ کی یہ روٹین ہو جاتی ہے بڑی ٹیموں کو ہرانا. اور سیم کرن ہی از سچ اے فینومینل پلیئر, آئی پی ایل کھیلا ہے, ڈیزرٹ وائپرز کو بھی کیپٹنسی کر کے جتائی ہے. سو وہ ایسے سچویشن میں سیم کرن ویری انڈر ریٹڈ پلیئر ان دا ورلڈ. ایسی سچویشن میں سب سے زیادہ نرو پہ کنٹرول میں نے ابھی تک تو دیکھا ہے ورلڈ کرکٹ میں. سیم کرن میرے ٹاپ 3 لسٹ میں آتا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ انڈر پریشر ڈیتھ اوورس کرنا یا جس طرح مرضی کرنا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اظہر بھائی اس کی کوچنگ کرتے تھے ان دونوں بھائیوں کی, تو اظہر بھائی کہتے تھے کہ ہی از ویری کلیور. اس کے بعد پیس نہیں ہے اتنی, لیکن ہی از ویری کلیور. اور وہی بات ہم کل شو پہ کر رہے تھے کہ کس طرح بلف کرنا ہے, کس طرح وہ کرنا ہے. تو سیم کرن نے کل آئی تھنک نروز پہ قابو پایا, اور بہت بڑی ڈیفیٹ سے انگلینڈ بچا ہے, کیونکہ امبیرسنگ بھی ہو سکتا تھا نیپال سے ہارنا اتنی بڑی کنٹری کے لیے. اینڈ وی اسپوک اباؤٹ اٹ کہ یار ریسنٹ ٹائمز میں وائٹ بال کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ ایک ڈاؤن فال ضرور نظر آتا ہے, لیکن جس میں ایک ایمیننٹ پرابلم اب بھی سہیل بھائی نظر آتا ہے وہ ان کی بالنگ کا ہے. کل ہم نے ہلکا سا تذکرہ بھی کیا تھا کہ یار یہ شاید بیٹنگ سے تو کوپ اپ کر لیتے ہیں, بیٹنگ کے بالنگ کے ان کے ایشوز ہیں. لوک ووڈ کو اگر آپ دیکھ لیں 10 سے اوپر کی اکانومی رہی, جوفرا آرچر کی 10 سے اوپر کی اکانومی رہی تقریباً. اس کے بعد یہ سیم کرن کی بات کرنا, اگر سیم کرن کل شاید نہ ہوتے, نیپال 8-10 اوورس تو جیت ہی گیا تھا, بے شک میچ جو ہے وہ انگلینڈ جیتا. وٹ ڈو یو تھنک از رانگ ود انگلینڈز بالنگ؟ آئی تھنک وی کین سرٹنلی اسپیک اباؤٹ دا فال آف وکٹس, جو آپ کو وکٹس دکھاتے ہیں نیپال کی. سو پلیز ٹیک اس تھرو ایک ذرا ٹیکنیکل قسم کا اور ٹیکٹیکل قسم کا انالیسس کر کے ہمیں بتائیں کیا دس از واٹ انگلینڈ ایکچولی نیڈس ٹو ڈو. دیکھیے میں تو جو آرچر کے جس اوور سے گیم چینج ہوا, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے کل بھی بات کی, ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ کیا بال کرنا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے بینگ اے بالر. اور کل انہوں نے مطلب یو بول 140 پلس, اور نیا بیٹسمین آیا اینڈ یو بولنگ سلو ونس ٹو ہم. ایک سلو ون آپ نے کیا, اس پہ آپ کو چھکا لگ گیا, اینڈ دین یو بولڈ ون مور اگین. تو یہ اب یہاں پہ آسان تھا کہ آپ 140 پلس والے بولر ہیں, ایک نیو ٹیم ہے, آپ لانگ آن لانگ آف پیچھے رکھ کے یارکر کرتے ہیں. اس میں اگر آپ کا یارکر مس بھی ہو جاتا ہے, لو فل ٹاس بھی ہوتا ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس کے اوپر چھکا مارنا. تو میرے خیال میں جو انہوں نے آپشنز چوز کیے اس اوور میں, وہ آئی تھنک, اور اسی پہ میں نے بات کی کہ دے آر ناٹ اسمارٹ انف وین اٹ کمز ٹو T20 بولنگ. ویئر ایز سیم کرن کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے جو آپشن چوز کیے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھے, کہ لانگ آن لانگ آف پیچھے ہے اور آپ نے فل بولنگ کی, اور آپ فیلڈ کے مطابق بولنگ کی, اور یو آسک دیم ٹو ہٹ اوور دا لانگ آن اینڈ لانگ آف. سو میرے خیال میں جو آرچر کا وہ اوور تھا, اینڈ دین اوور آل تھرو آؤٹ ان کی بالنگ اگر آپ دیکھیں اس میں ڈاوسن اور سیم کرن کے اگر اوور اتنے اچھے نہ ہوتے تو شاید وہ ایک اوور پہلے جیت چکے ہوتے. سو انگلینڈ ہیز لاٹ ٹو ورک آن وین اٹ کمز ٹو بالنگ. اینڈ دیر از ون مور تھنگ وچ دے مائٹ پرابلی ہیو ٹو ورک آن, کیونکہ کل جب عماد سے بات ہوئی تو عماد نے کہا کہ یار ان کے پاس اسپن ڈپارٹمنٹ بھی اس طرح سے ہیوی نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال ہے اٹ واز اونلی عادل رشید وچ دے ور ریلائنگ آن. 3 اوورس کرائے انہوں نے, ان کی 14.5 کی اکانومی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاید ممبئی کی کنڈیشنز اس طرح سے کنڈیوسیو نہیں تھی اسپن کے لیے؟ نہیں دیکھیں 3 میں 42 تو جسٹیفائی نہیں ہوتا کسی بھی صورت پہ, اور اتنا اچھا بالر عادل رشید جس طرح بالنگ کرتا ہے. لیکن آئی تھنک ان کی بہت زیادہ ویک پوائنٹس ہیں. ان کے پاور پلے میں, کیونکہ لیوک ووڈ بہت زیادہ ہمارے ساتھ کھیلا ہے, پاور پلے میں کافی اچھی بالنگ کرتا ہے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا پاور پلے اب ڈاوسن زبردستی کر رہا ہے یا ول جیک زبردستی کر رہا ہے. جو اچھی ٹیمز ہوں گی وہ کیپٹلائز کریں گی, وہ نہیں ایسے جانے دیں گی.
सो ल्यू कुक के 2 मैक्सिमम ओवर होते हैं जो वो अच्छे करेगा पावर प्ले में, उसके बाद आप पावर प्ले पूरा वो है, मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद विकेट नहीं लेगा, सेम जैसे राशिद खान है, इनके लिए आदिल रशीद अगर विकेट्स नहीं लेगा तो बड़ा नुकसान होगा। डेथ बॉलिंग का इनका बहुत बड़ा मसला है। मुझे सैम करन से सिर्फ एक ही प्लेयर है जो अंडर प्रेशर इस टूर्नामेंट में अगर इंग्लैंड आगे जाएगा तो सैम करन डिपेंडेबल प्लेयर होना चाहिए इनकी बॉलिंग लाइनअप पे। लेकिन वो आप देख लें कि सैम करन इज़ नॉट देयर फ्रंट लाइन बॉलर, उसके ऊपर वो बैंक नहीं करते। आप देख लें कि ही वाज द लास्ट, मतलब छठे नंबर पे उसको बॉलिंग कराई गई है, मतलब यू ट्राई 5 बॉलर ऑफ्टन के वो उसको स्क्वाड में शामिल भी करें। हाँ, सो जो उनका मेन बॉलिंग टैंक है, जो बॉलिंग लाइनअप है, उसमें तो ही डजंट एग्जिस्ट। तो आप उसमें अगर आप देख लें जोफ्रा आर्चर, लुक वुड भी ही गुड विद अ न्यू बॉल, लेकिन पुराने बॉल पे ही स्ट्रगल, क्योंकि उनके पास वो वेरिएशन नहीं है, यॉर्कर उतने तगड़े वो नहीं मार सकते। तो और आदिल का मुझे कल जो लगा वो ही वाज ट्राइंग टू बाय विकेट्स। वो होता है जब आप एसोसिएट टीम या छोटी टीम के खिलाफ खेलते हैं ना, तो यू ट्राई सो मेनी थिंग कि यार इनको तो हम कर लेंगे, लेकिन आजकल की क्रिकेट में अब ये चीज़ नहीं हो सकती कि यू टेक एनी ओपोजिशन लाइटर। विल जैक्स भी उनका राणा ही लग रहा है। और नो ही प्लेड सुपर इनिंग यार। मैं वो लेकिन अगर हम इसी चीज़ की बात करें, अब ऑब्वियसली जो इंग्लैंड के मेन बॉलर्स थे, जो हमें लग रहा था कि वो इंग्लैंड को आसानी से मैच जिता देंगे, ऐसा हुआ नहीं था। दे weren't able to take wickets for them। अब इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो उनके जो ओपनर्स थे फिल सॉल्ट और जॉस बटलर, you know, a lot expected from them but they weren't able to deliver with the bat। and then you know, अगर हम बात करते हैं ऑब्वियसली जब आपके ओपनर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, पाकिस्तान की टीम को भी अगर शामिल करते हैं, हाँ एग्जैक्टली, तो आपका मिडल ऑर्डर भी जो होता है, यू नो, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अब हमने इधर देखा है कि इंग्लैंड की अगर बात करें, इवन आफ्टर देयर ओपनर्स डिडंट परफॉर्म, बट जेकब बेथल, वी नो ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट एंड ही वाज एबल टू स्कोर फॉर देम। एंड देन ऑफ कोर्स डाउन द ऑर्डर हैरी ब्रूक आ गया, विल जैक्स लाइक यू सेड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स। तो इस तरह की चीज़ कितनी ज़रूरी होती है एक यू नो प्रॉपर फिल्म मेंबर नेशन के लिए कि वो इस तरह डिलीवर कर सके व्हेन इट मैटर्स मोर। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है जो इनकी बैटिंग लाइनअप है 184 भी इन्होंने कम बनाए हैं, क्योंकि इनकी पावर हाउस है, सारे टॉप क्लास प्लेयर हैं। आप किसी का भी नाम ले लें, बीच में एक लेफ्टी भी है, जेकब बेथल भी है, सैम करन को भी प्रमोट कर सकते, तो इनके पास सारी चीज़ें हैं बैटिंग में। तो आप बैटिंग में इनको ऐसे नहीं कुछ कह सकते कि बैटिंग ऐसे हो, लेकिन बॉलिंग में मुझे सिर्फ ये फ़र्क लगता है, बैटिंग इनकी टॉप क्लास है। वो कुछ भी चेस कर सकते हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, सो दे कैन चेस एनीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज वंस दे स्कोर रन्स, can they defend? Yeah. That is the problem. Yeah. Exactly, and this is where, you know, Will Jacks comes in. You know, so your answer to your question is, you know, how Will Jacks actually took the responsibility and he made sure that I'm going to go in Get and go more all runs, guns yeah, blazing. on And the that's आपको exactly what एक was मजे की important. बात बताऊं, ये ओपन करता है, हाँ, नीचे सरे से ये ओपन करता है, 100 पे ये ओपन करता है। लुक, इफ ही कैन कम एंड प्ले एट नंबर 7, फिनिशिंग रोल कर सकता है, सो व्हाई नॉट आवर प्लेयर्स? दिस इज द प्रॉब्लम वी आर लैकिंग, कि हमारा जो नंबर है, हम उस नंबर के अलावा कहीं खेलना ही नहीं चाहते। हम तो ऊपर खिलाना चाह रहे हैं, बल्कि जो भी हम तो नहीं, कह रहे हैं देखें, ऊपर ले जाओ इसको। टॉप 3 के अलावा भी आपके पास ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप जाके खेल सकते हैं। विल जैक्स नंबर 7 पे खेल रहा है, सोहेल भाई और मैं कितने अरसे से उसके साथ तो खेल रहे हैं, फखर open को भी करता है 5वें नंबर पे खेलने पे कोई मसला तो नहीं है। लुक, अगर 5वें 6वें 7वें फिनिशिंग भी कोई करना चाहे तो उसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर आप हो, आपको खेलना आना चाहिए उस हिसाब से, तो आपको ख्वाजा नाफे अडेप्ट को भी करना डाल है। सकते ये हैं, जो yeah. बाद में कहा है ना तुमने, खेलना आना आना चाहिए, चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स, सिंपल। आपको अच्छा, ये देखिए T20 में That's खेलना, end the debate. लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं आप लोग ऑल अक्रॉस द ईयर, आप लोग कोशिश कर रहे हो, पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं। हमारे खिलाड़ी भी हमने देखा, बिग बैश हो, CPL हो, कहीं पे भी हो, हमारे खिलाड़ी भी फीचर कर रहे हैं, IL T20 हो। तो अगर यहाँ पे नहीं सीखना आपने, तो फिर आप कहाँ सीखते हैं T20 की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें? देखें, आपके मेनली हमेशा से लीग क्रिकेट में आप देखेंगे तो आपके बॉलर्स ज़्यादा पिक होते हैं, आपके बैट्समैन बहुत कम पिक होते हैं। मैं शुएब मलिक, मतलब अगर अपने उसकी टाइम की बात करूं तो शुएब मलिक वाज द वन हु वाज प्लेइंग ऑल लीग्स। वन आउट लीग की बात नहीं कर रहा, मतलब ऑटो पिक वो थे कि वो खेल रहे थे। अदर देन दैट मतलब बांग्लादेश में हमारे बैट्समैन पिक हो जाते हैं, बट बाकी आप यू टॉक अबाउट काउंटी क्रिकेट, बाबर, रिजवान, हसन नवाज, शादाब, ये तो मैं उंगलियों पे आपको बता रहा हूँ, उनको बैटर्स की वजह से ही लेकर नहीं, गए थे। मैं जो आपने कहा ना कि कंसिस्टेंटली खेलने की बात मैं कर रहा हूँ, वन आउट की बात नहीं कर रहा। वो तो IL T20 खेले हैं, बट उसमें भी आप सक्सेस रेट देख लें कि कितनी सक्सेस उनको मिली है, या बिग बैश की अगर आप बात करें तो वहाँ पे कितनी सक्सेस हमें मिली है हमारे बैटर्स को ओवरऑल। लेकिन बॉलर्स को मिली है नहीं, बॉलर मैं वही कह रहा हूँ, बॉलर्स बॉलर्स को मिलती जा रही है। बॉलर जितने भी हमेशा हमारे खेले हैं, वो जहाँ पे भी खेले हैं, मोस्टली दे सक्सेसफुल, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो उनके तो
लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट ना इज टोटली डिफरेंट दैन इंटरनेशनल क्रिकेट. उसकी डिमांड्स टोटली डिफरेंट हैं. जैसे आप 1-2 मैचेस में नहीं करेंगे, वो इतनी हमें लगता है जो नहीं खेलते या उनको लगता है कि इट्स वेरी इजी कि आप जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं. वहाँ पे इससे ज़्यादा प्रेशर होता है. इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप यूर अ गुड प्लेयर एक कंट्री के लिए कुछ सर्टन टाइम के लिए खेल जाते हैं तो ऑटो चॉइस हो जाते हैं. इन लीग क्रिकेट ओनली 4 ओवरसीज अलाउड. वहाँ पे कोई आपकी सीमेंटेड प्लेस नहीं है. अगर आप इफ़ यू नॉट डूइंग वेल 1 or 2 मे बी 3 गेम्स, उसके बाद आपको चेंज कर दिया जाता है. तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ का कि यू हैव टू डिलीवर बिकॉज यू आर अर्निंग मनी. और सेकेंडली उधर अगर मुझे वो कहना नंबर 4 बारी करनी, यूजुअली मैं नहीं करता, तो मुझे करनी पड़ेगी. मैं उनको ना नहीं कर सकता. तो जब टीम कहती है आपको कि यार अपने इस नंबर पे करनी, तब आप मना कर सकते हैं? नहीं, तब भी नहीं करना चाहिए. अच्छा, ना कर सकते हैं, ना करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स का काम ही ये है. जहाँ पे आपको कैप्टन या कोच कह दे कि यार इधर बारी करनी है, सो अडेप्ट करना आपका काम है. आपने कैसे उसको करना और क्या डिमांड है वो आपका काम है एज अ प्लेयर. यार लेकिन चलो देखिए, चूंकि अब ये बात हो रही है तो मैं जरा चाहता हूँ कि हम इसको कंक्लूड भी तरीके से करें. अब मैं इसको रखता हूँ उस्मान के कॉन्टेक्स्ट में. उस्मान एक वो खिलाड़ी जिसको आप PSL से लेकर आए, सेंचुरी की वजह से लेकर आए थे, UAE से आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया. वो ऊपर खेलने वाला लड़का था, ओपन करने वाला लड़का था. अब आप उसको चौथे या 5वें नंबर में बारी देंगे. आपके पास है बॉस 15-20 सालों का एक्सपीरियंस, उनके पास है उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस. उस्मान के पास कहाँ से एक्सपीरियंस है कि वो एकदम से अडॉप्ट कर ले जो उसको नया रोल दिया गया. तो ये मेरा आपसे यही जवाब है. विल जैक्स के बाद कौन सा एक्सपीरियंस था? हाँ, या कौन सा एक्सपीरियंस ठीक है. और भी ऐसे प्लेयर, हसन नवाज को जब कोयटा ने 4 नंबर 5 नंबर खिलाया, उसने परफॉर्म किया वहाँ पे, उसने दिखाया कि मैं आके इस नंबर पे कर सकता हूँ. वो भी ओपन करता है हसन नवाज. सो आई थिंक जो भी प्लेयर है ना, सिर्फ T20 की बात करूँ स्पेसिफिकली, आप जो मर्जी नंबर, आपको हर नंबर पे खेलना आना चाहिए. यू नेवर नो उस टाइम पे किसकी फॉर्म लगी हो. अभी उस्मान है या बाबर है, वो अगर नहीं खेल सकते क्योंकि साहिबजादा और साइम बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो आपको अडेप्ट करना कि यार मैंने इधर इस टीम के अंदर अगर रहना है तो मुझे इस नंबर पे बारी मिलेगी तो मैं इस नंबर पे करके देगा. एंड आई एम श्योर दे विल डू इट in coming days. अच्छा, I just have one last thing to say regarding this कि अब बाकी जो टीम्स हैं उनको देखें, जैसे इंडिया हो गई, तो वो कंसिस्टेंटली अपने बैटर्स को उसी नंबर्स पे खिलाते हैं और आप रिजल्ट्स भी उनके देखते हैं. तो how it with that fit into this? क्योंकि पाकिस्तान का यही प्रॉब्लम है कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो स्क्वाड में पता नहीं है कि किसने किस नंबर पे. When आप फ्रेंचाइजीज से खेलते हैं ना, so it's up to you कि आप किस नंबर में बारी करें. और आपको 1-2 नंबर हाई बारी करना चाहिए फ्रेंचाइज से जब आप खेलते हैं. लेकिन जब आप कंट्री से खेलते हैं, क्योंकि इतनी क्वालिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पर्टिकुलरली उस नंबर पे शायद बारी ना मिले. सो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप ओपन भी कर सकते हैं, आप 6 नंबर भी जा सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जब जिस जगह पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऑप्शंस इतनी नहीं है, क्योंकि 8 टीमें हैं, 10 टीमें हैं, आपको उसी नंबर पे लिया जाएगा. तो जब वो मिलजुल के जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो उस नंबर का मसला नहीं होना चाहिए किसी को भी. जाओ जाके खेलो और आई एम श्योर दे विल डू इट. एग्जैक्टली, और होना भी ऐसे ही चाहिए. जस्ट वेरी क्विकली बिफोर वी रैप अप दिस सेगमेंट एंड वी हेड आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, सुहेल भाई, व्हाट डू यू थिंक नेपाल शुड डू in days to come, you know, for their World Cup campaign to be better than the way that the result has actually come out against England? फिर भी वो 7 विकेट्स लेने में कामयाब हुए. अपनी बॉलिंग में तब्दीली करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 184 रन कंसीड किए सबसे पहले, और उसके बाद शायद बैटिंग में उनके पास वो आमरी मौजूद थी. अनफॉर्चुनेटली वो शायद स्किल सेट या नर्व्स की जो आपने बात की वो ठीक थी. ज़रा फॉलो विकेट्स पे भी नज़र डालेंगे ताकि साथ ही आप हमें बता भी सकें यार नेपाल अगर ये तब्दीलियाँ कर ले तो उनकी कैंपेन और बेहतर भी हो सकती है. जी, गो अहेड. नहीं, आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि उनको कुछ मैसिव कुछ चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है. कल वाला मैच इट वाज किसी का भी वो एनीबॉडी गेम थी और आप 3-4 रन से हारते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई, मेरे हिसाब से तो रिजल्ट नहीं उनको मिले, बट दे कैन टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव आउट ऑफ दिस गेम. और ये उनको कॉन्फिडेंस देगी कि आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ अगर ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो यू कैन बीट एनी टीम, राइट. तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर चेंजिंग करने की उनको ज़रूरत है. दे गुड इनफ, दे बोल्ड वेल. यस, 182 आप सही कह रहे हैं, बट इंग्लैंड का पावर हाउस आप देखें और जो पिच थी, जिस तरह का ग्राउंड है, शॉर्ट बाउंड्रीज इंडिया में आपको पता है शॉर्ट बाउंड्रीज होती हैं, तो उसके हिसाब से इट वाज नॉट बैड. आई थिंक इट वाज अ गुड एफर्ट. good catches as well. Good catches. The ground fielding was good. Bowling, yes, वो 1-2 ओवर्स में देखें T20 क्रिकेट में आपके 1-2 बॉलर्स को मार पड़ती है. वो पड़ी उनके, वो जो मेन करण केसी जो हैं जिनके ऊपर वो बैंक करते हैं, ही बॉल्स वेरी गुड विद न्यू बॉल और एंड पे भी आके ही यूज्ड टू वेरी गुड. बट कल वाला मैच उनका ऑफ गया. बट
अगर वो इफ़ ही चिप्स इन एंड देन वो जो एंड पे बैटिंग में मैं उनके कैप्टन का एक लेकिन मुझे है कि क्योंकि मैं एनपीएल भी खेला वहाँ पे भी थोड़ा सा वो जो है ना वो वनडे टाइप क्रिकेट खेलते हैं रोहित जो है वो अगर उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर होता तो मे बी क्योंकि उन्होंने भी 33 या 34 बॉल्स पे अगर वो थोड़ा सा मिडल ओवर में एक्सेलरेट कर लेते तो बेहतर होता। तो मेरे ख्याल में जो ये मार्जिन रह गया था वो भी दे कुड कवर बट टू सम इट अप आई थिंक नेपाल डिड वंडरफुली वेल एंड दे टुक लॉट पॉजिटिव आउट ऑफ दिस गेम एंड दे कैन carry it on in coming games. Definitely. अच्छा अब हम चलते हैं शॉर्ट सी ब्रेक की तरफ. We just spoke about the England and Nepal last ball thriller. अब जब हम वापस आएंगे we're going to be talking about the next match. So make sure you don't go anywhere and keep watching the dugout. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for streaming us live on Tamasha and Maiko, and ladies and gentlemen, for watching us live on Jio Super as well. एक दफा फिर से डगआउट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं. पहले गेम के हवाले से बात कर चुके हैं. What next game are we talking about, Mehak? We will be talking about the Sri Lanka and the Ireland game, जिसमें जो Sri Lanka था, you know, they didn't win by such a small margin as we can see the match summary here. Sri Lanka won by 20 runs. सबसे पहले श्रीलंका ने बैटिंग की थी, उसमें हम देख सकते हैं कि Kusal Mendes, he scored 56, फिर Kamindu Mendes भी उन्होंने 44 किया down the order, फिर Pathum Nissanka scored, he played a good cameo for Sri Lanka, scoring 24 runs off of 23 balls. और फिर अगर आयरलैंड की बॉलिंग की बात करें तो उसमें उनके जो जॉर्ज डॉक्रेल थे उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, बैरी मैककार्थी ने भी 2 विकेट्स ली. और फिर आयरलैंड की तरफ चलें तो उसमें हैरी टेक्टर और ने 40 स्कोर किए थे, साथ में रॉस अडेयर एंड लॉर्कन टकर ने काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस की उनकी तरफ. एंड देन श्रीलंका की बॉलिंग जो काफ़ी ही तगड़ी है, उसमें महीश थिकशाना showed up for Sri Lanka once again, 3 wickets उन्होंने ली. फिर Hasaranga of course was also very valuable for Sri Lanka, taking 3 wickets, and this is how basically Sri Lanka won the match by 20 runs. अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि श्रीलंका की जो बॉलिंग है वो काफ़ी तगड़ी है, एज वी ऑलरेडी नो. अब बैटिंग की तरफ चलते हैं. उनके जो कुछ बैटर्स हैं जिन्होंने उनके लिए परफॉर्म किया, हमें पता है कि निसांका और मेंडिस उनके लिए जनरली यूजुअली उनको स्कोर्स देते हैं, उनको रन्स देते हैं, दे डू परफॉर्म फॉर देम. लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करते तो जो उनके बाकी बैटर्स हैं वो थोड़ा सा दे डू कोलैप्स क्वाइट अ बिट. अब वो ज़माना ऑब्वियसली चला गया जिसमें श्रीलंका हैड बैटर्स लाइक महिला जयवर्धना हो गए, सनत जयसूर्या, देन यू हैड कुमार संगकारा जो उनके क्लास बैटर्स और प्लेयर्स होते थे. तो अब इस तरह जब आगे, अब ऑब्वियसली जो मैच ये श्रीलंका जीता है वो आई थिंक थोड़ी सी नेपाल की आई वुड से केयरलेसनेस की, सॉरी नेपाल नहीं, आयरलैंड की केयरलेसनेस की वजह से भी जीता है, बिकॉज दे ड्रॉप्ड 5 कैचेस एंड दैट रियली डिड टर्न द गेम अराउंड. तो अगर ऐसा ना हुआ होता तो श्रीलंका सीम लाइक दे वर इन डीप ट्रबल. अब आगे जाके श्रीलंका को क्या व्हाट विल दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट? देखिए श्रीलंका जैसे आपने भी ग्रेट संगकारा, जयसूर्या और महिला की बात की, ऑब्वियसली वो ऐसे प्लेयर थे जो लंबी इनिंग्स खेलने वाले थे. अभी की जो श्रीलंका की टीम है ये आपको एज ए टीम एफर्ट करती हुई नज़र आती है. व्हाट आई मीन इज़ के कंट्रीब्यूशन करते हैं, छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस को. बड़ा प्लेयर आपको बड़ा नाम शायद उस हिसाब से जैसा संगकारा, जयसूर्या या जयवर्धना जैसा नज़र नहीं आएगा, बट दीज ऑल प्लेयर्स contribute in 20s and 30s and then they put up around 170, 180. तो वही आपको इस मैच में भी नज़र आ रहा है कि आपको निसांका को आप देखें, आप कुशाल मेंडिस कैप्टन जो हैं वो कुशाल मेंडिस कैप्टन अभी नहीं हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ही बेसिकली प्लेज अ रोल. ये ऐसे बैट्समैन हैं जो कि इम्प्रोवाइज करते हैं. इज़ नॉट अ पावर हिटर बट स्टिल बैट्स विद हेल्दी जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ, कि वो पेस यूज़ करते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, ही प्ले स्वीप एंड सो बेसिकली इम्प्रोवाइजर इनको कहते हैं. एंड देन दे हैव फायर पावर इन शानका जो कैप्टन है, ही कैन गो यस्टरडे बट ही कैन हिट लॉन्ग बॉल. और फिर आप कमेंडो मेंडिस जिन्होंने 44 आई थिंक उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी 18-19 बॉल्स, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर फॉर मैं इसी हवाले से ही बात करना चाहता हूँ. देखिए छठे नंबर के ऊपर आके ये फायर पावर देना, जब आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली आपका टोटल वहाँ नहीं, पहले 10 ओवर्स में हमें भी ये बात नजर आ गई थी कि श्रीलंका जो है वो स्लो खेल रहा है. I'm going to move on to Imad over here. Imad, Kamindu Mendes coming at number 6, making sure that he actually gives the innings जो जिसकी उस टाइम श्रीलंका को जरूरत थी. पहले 10 ओवर्स में आप स्लो खेलते हैं, आपका जो रन रेट है वो समवट अराउंड 6.5 to 7.5 रहता है. आयरलैंड के पास बहुत ही बड़ी लग्जरी थी कि उनके पास इतने स्पिनर्स थे, बट फॉर कमिंडू मेंडिस टू कम इन, फिर मैन ऑफ द मैच बने वो. 18 गेंदों में गालबन उन्होंने 44 रन बनाए. डाउन दी ऑर्डर
but phenomenal innings. कमिंडू मेंडिस और मेरी नज़र में हसन रंगा ने मैच जिताया है। कमिंडू मेंडिस हर तरफ खेलते हैं, रिवर्स स्वीप, सामने टांग रख के मारना, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। इसके साथ काफ़ी इसको देखा है हम लोगों ने रिसेंटली, इसकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी हैं। तो आई थिंक लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुशाल मेंडिस एक ऐसा प्लेयर है उनका जो इनिंग्स को पूरा लेके चलता है। अभी भी जो क्वालिटी है ना कुशाल मेंडिस की, उसकी वो पूरा नहीं उतर रहा। 56 और 43, कुशाल मेंडिस बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है उनका। सो आई थिंक बैटिंग को इसी तरह ही सोहेल भाई ने जैसे कहा कि चिप इन करके जाना पड़ेगा, कुशाल मेंडिस के अराउंड खेलना पड़ेगा। लेकिन बॉलिंग में अगर, क्योंकि हसन रंगा कल थोड़ा सा इंजरी की वजह से थोड़ा सा उसे वो फिर आया और उसने मैच जिताया एक टांग पे। सो आई थिंक ये हर टीम में एक प्लेयर ऐसे होता है जो मैच विनर होता है आपका प्रॉपर। सो अगर हसन रंगा इंजर्ड होता है, अनफिट होता है, तो मेरा नहीं ख्याल श्रीलंका का कोई भी चांस है टॉप 8 के बाद सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का, क्योंकि हसन रंगा काफ़ी सालों से 4-5 सालों से अकेला उनको मिडल ओवर्स में मैच जिताता है और ऐसी जगह पे सिचुएशन में बॉलिंग करता है जहाँ सबसे ज़्यादा क्रूशल है विकेट्स लेना। कल आपने देखा टैक्टर और टक्कर एक वक्त में था 102 पे 2 थे। मैं मैच देख रहा था, मैंने कहा ख़त्म है अगर हसन रंगा को उन्होंने टैकल कर लिया। वही हसन रंगा आया है, एक टांग पे उसने 2 आउट किए हैं उसी ओवर में, मैच खत्म। और ठिकशाना काफ़ी अच्छे से उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है ठिकशाना की उस तरह की जिस तरह की ये शुरू में आगे कर रहा था, तो कल उसका भी कॉन्फिडेंस आया। तो ये 2 प्लेयर, और पथिराना आपको पता है IPL खेला हुआ है, बड़ा क्रूशल है उनका। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक उनका स्लिंगी बॉलर है एक और, उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि नए बॉल से वो बहुत डेडली बॉलिंग करता है। वो पता नहीं क्यों नहीं खेला। सो ओवरऑल इतना हैप्पी नहीं होंगे श्रीलंकन अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि उनको दे शुड हैव स्कोर ओवर 180 फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इधर तक आना नहीं चाहिए था आयरलैंड को, श्रीलंका के अगर मैं देखूं तो वही अगर बात करें यू नो श्रीलंका की बैटिंग की और आयरलैंड की, जैसे मैंने कहा यू नो केयरलेसनेस की, फील्डिंग की तरफ चलते हैं। अगर यू नो आई थिंक श्रीलंका काफ़ी लकी हो गए थे, क्योंकि अगर आयरलैंड ने वो 5 कैचेस ड्रॉप ना किए होते तो स्टोरी काफ़ी डिफरेंट होती एंड आयरलैंड प्रॉब्ली वुड हैव टेकन अवे दिस मैच। देखिए यही डिफरेंस है वर्ल्ड कप जीतने में या टॉप 4 या टॉप 2 पे पहुंचने में, जिसकी फील्डिंग जो फील्डिंग साइड अच्छी फील्डिंग करेगी, कैचेस पकड़ेगी। अब जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने यही बात की कि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी हो गई है ओवर द ईयर्स, उनकी ड्रॉप कैचेस बहुत कम हो गए हैं, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है। सो आई थिंक यही वो चीज़ें जिसकी वजह से आप सफ़र करेंगे। सूर्या कुमार यादव का कैच छोड़ना, फ़हीम का कैच छोड़ना, और कल उन्होंने 5 कैच छोड़े, तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और अच्छा प्लेयर एक बार कैच छूट जाए तो आपको पे ऑफ ज़रूर करता है अच्छा प्लेयर। सो फील्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली मेरा ख्याल है यहाँ पे जो एक और सवाल बनता है वो आयरलैंड की जो, या चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉल स्टर्लिंग की कप्तानी के हवाले से बात कर देंगे। मुझे लगा कि जब वो टैक्टर को लेकर आए, इट वॉज अ टैक्टिकल चेंज, उन्होंने अडेप्ट किया, उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए, बट दोबारा टैक्टर फिर बॉल कराते हुए, गेंदबाजी करते हुए नहीं नजर आए। वॉज इट मैचअप्स फर्स्ट ऑफ ऑल, या आपको लगता है कि पॉल स्टर्लिंग और कुछ अच्छा फैसला ले सकते थे या उनसे और ओवर्स कराए जा सकते थे? देखिए मेरे ख्याल में वो जब आप इस तरह के बॉलर को लेके आते हैं तो आइडिया यही होता है टू गेट अ विकेट, और मे बी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे लाते हैं। एंड देन मेनली कैप्टन का जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपने मेन बॉलर्स के ऊपर ही होता है। वो एक गैम्बल आप करते हैं, इफ़ इट पेज ऑफ तो आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि कैप्टन्स डोंट कैरी इट ऑन, वो एक आध ओवर के लिए ही लेके आते हैं, उसके बाद नॉर्मली मे बी कुछ दूसरा ओवर करवा देते हैं, बट मोस्टली एक ही ओवर तक होता है। देन यू इफ़ यू गेट अ विकेट यू ब्रिंग बैक योर मेन बॉलर्स। तो मेरे ख्याल में दैट्स व्हाट वाज इन हिज माइंड जो पॉल स्टर्लिंग के। बट मेरे ख्याल में जैसे इमाद ने भी कहा, आई थिंक द ड्रॉप कैचेस वर द डिफरेंस, और अगर वो कैचेस हुए होते तो आई थिंक इट कुड हैव बीन डिफरेंट स्टोरी। जी मान सोहेल भाई फिर टेक्निकल सवाल आपसे, अगर जैसे जोफ्रा आर्चर ने कल 3 छक्के खाए हैं, सो एज अ बॉलर आपको अगर फिर आके एक इंपॉर्टेंट ओवर करना हो और कैप्टन ना दे आपको ओवर, जैसे सैम करन से उन्होंने करवाया, तो व्हाट इज योर थॉट ऑन इट कि राइट डिसीजन है? सपोज इफ यूर बॉलिंग एंड यू वेंट फॉर 24 और 25 एंड देन कैप्टन आपको ओवर ही ना दे, सो व्हाट वुड यू थिंक ऑफ दैट? देखिए मेरे ख्याल में उस दिन अगर मैं जोफ्रा आर्चर हूँ और मुझे एक ओवर में रन्स हो गए हैं और वो बड़ी क्रूशियल स्टेज है, तो कैप्टन का मुझे ओवर ना देना आई थिंक इज़ द राइट डिसीजन मेरे ख्याल में। क्योंकि होता है ऑफ डे होता है, आप जितने मर्जी बड़े बॉलर हों, जितने मर्जी बड़े बैट्समैन हों, आपका ऑफ डे हो सकता है। इफ़ इट इज़ योर ऑफ डे, आप कुछ अच्छा भी समटाइम, आप जब बुरा दिन होता है ना, कई दफ़ा होता है कि आप इतना तगड़ा यॉर्कर में मारता था, वो एज लग के तो फाइन लेग पे चौका हो जाता था।
आप यू कांट हेल्प इट। और सम टाइम आप फुल टॉस भी करते हैं, अगर आपका अच्छा दिन है तो वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे कैच हो जाता है। सो दैट लक डेफिनेटली मैटर्स। तो अगर आपका एक ओवर बुरा हो गया तो देयर इज़ नो हार्म। आप मतलब लाजमी नहीं कि मैं को ठेका लेके आऊँ कि मैंने 4 ओवर कराने ही कराने, मैंने बॉल में पैसे तो नहीं डाले हुए, तो मैंने 4 ओवर पूरे कराने सुहेल भाई ये देखिए सवाल इसलिए पोर्टेंट सवाल है और पर्टिनेंट सवाल है। इसकी वजह ये है एक तो आर्चर इंजरी के बाद वापस आए, फिर उनका इंजरी का आना जाना लगे ही रहता है। बट फॉर अ प्रीमियम पेसर लाइक जोफ्रा आर्चर जो एक ओवर में रन्स कंसीड कर उसके बाद उनको आप ना दें ओवर, मुझे लगता है कि आगे की भी उनकी वर्ल्ड कप की कैंपेन इससे डैमेज हो सकती है या नहीं, आप बता सकते हैं। नहीं देखिए, अच्छा इसमें डिपेंड ये करता है कि आप जो बॉलर है जैसे जोफ्रा आर्चर है वो मेंटली वेरी स्टैंड्स। सेकेंडली कैप्टन का कॉन्फिडेंस ऑन सर्टन जिस भी इंडिविजुअल की बात हो रही है उसके ऊपर कितना है। ये मतलब इट्स नॉट अ मैं यहाँ बैठ के कह दूँ, क्योंकि वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैप्टन का कॉन्फिडेंस, उसके बाद बॉलर का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है। एक होता है ना कि बॉलर को मार पड़ी, मैं तगड़ा हूँ ना तो मैं जाके कहूँगा यार नहीं मैंने करना है कैप्टन मुझे दो, मैं करके दिखाऊंगा। दैट मैटर्स, दैट डेफिनेटली मैटर्स। कि जैसे इमाद है, इमाद अगर तगड़ा है कहता था कि नहीं यार मैंने नया बॉल करना है, बेशक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ गया मेरे सामने लेकिन मैंने करना है, तो यू नो दैट मैटर्स, दैट आल्सो मैटर्स। तो कैप्टन को ये चीज़ भी कंसीडर करनी होती है कि आया जिस बंदे के बारे में बात हो रही है वो यहाँ से कितना तगड़ा है। और दूसरा मेरा एक और सवाल है, क्योंकि मिडल ओवर्स आपने देखा है ज़्यादा स्पिन डोमिनेट करती है, वाई नॉट एक वैसे आइडिया कि जोफ्रा आर्चर जितनी उसके पास पेस है, वाई नॉट 6 ओवर के बाद आए, हार्ड लेंथ या बाउंसेस करे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर ले। क्योंकि मैंने देखा है जब वुड और आर्चर खेलते थे, मॉर्गन हमेशा यही करता था, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लेके एग्रेसिव बॉलिंग करता था। वाई नॉट उसको एज अ कैप्टन, अगर हमें से कोई कैप्टन होता है उसको ये कहता है आओ आगे बाउंसर मारो, तगड़े ओवर करो, 4 ओवर करो, बैट्समैन को डराओ ताकि दूसरे एंड से मैं ना आगे जब बात हो रही थी तो मेरे उस टाइम भी माइंड में ये चीज़ आई थी कि आइडियली आप जो 140 प्लस वाले बॉलर होते हैं ना, क्योंकि तेज़ होते हैं और पावर प्ले में प्रोटेक्शन नहीं होती, ठीक है, हल्का सा भी पेस यूज़ होती है तो आपको बाउंड्री लग जाती है, यू नीड प्रोटेक्शन। और अगर पावर प्ले के बाद आपको 140 प्लस वाले बॉलर को हिट मारनी है ना, तो आपको फिर पूरी हिट मारनी, 5 फील्डर पीछे हैं। तो ये टीम सिलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ें आती हैं कि आपने देखना है। अब उनके पास अगर आप देखें तो नए बॉल के 2 बॉलर ही नहीं है। ईदर यू हैव 2 फास्ट बॉलर हु कैन बॉल विद न्यू बॉल। देखें जैसा नया बॉल खेलना एक आर्ट है, नया बॉल करना इज़ अ आर्ट। हर बॉलर, जैसे मैं नए बॉल का स्पेशलिस्ट था, मैं अगर मिडल ओवर में आता तो मैं उतना इफेक्टिव नहीं था जितना मैं नए बॉल के साथ था, ठीक है। इसी तरह एक जो हाई स्पीड वाला बॉलर होता है लाइक वहाब यूज्ड टू बॉल इन द मिडल ओवर्स, ठीक है। वो शुएब अख्तर को देख लें, जो पेस वाले होते हैं वो मिडल ओवर में आके आपको ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। नए बॉल इज़ अ स्पेशलिटी, लेकिन ये आप अगर इंग्लैंड की लाइनअप देखेंगे तो उसमें दे डोंट हैव एनीवन। एक लुक वुड है हु इज गुड, हु कैन बॉल, वो स्विंग करता है नया बॉल, बट दूसरी साइड से कौन करेगा। लेकिन यहाँ पे इधर यू हैव अ स्पिनर हु बॉल्स विद अ न्यू बॉल, जैसे इमाद करता था, ये भी एक स्पेशलिटी। हर स्पिनर नया बॉल नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते यार इस पे तो टर्न हो रहा है तो स्पिनर को करा दो। उस स्पिनर को भी नया बॉल करना आना चाहिए, इट्स अ आर्ट। आप किसी को भी नहीं कह सकते। और बॉल नहीं आप खराब कर सकते एज अ स्पिनर। अगर मैं सोहेल भाई के साथ बॉलिंग कर रहा हूँ या मैं आमिर के साथ एक साइड बचानी है, तो मुझे एक साइड अच्छी रखनी है, शाइन रखनी है, पसीना नहीं लगने देना। हाँ, तो उससे बॉलर दूसरे बॉलर को भी फायदा होता था। लेकिन अच्छा यहाँ पे एक और सवाल कनेक्ट होता है, इवन दो दैट वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ ब्रेक, तो मेरे ख्याल है इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। आप दोनों में से कोई भी जवाब दे। आज की अगर बात करते हैं जिम्बाब्वे की गेम के, देखें अर्ली ऑन नए बॉल के साथ शायद जो भी बैटर खड़ा हो वो सारी शॉट्स नहीं अप्लाई कर सकता, एक तो नंबर 1। नंबर 2, जब आपने कहा कि यार 7वें ओवर के बाद जोफ्रा आर्चर की आप पेस को यूटिलाइज कर सकते थे, वहाँ पे तो प्लेयर शॉट्स फिर अपनी पूरी खोल सकता है क्योंकि आपके पास फील्डर अब बाहर आ गए। आज की जो स्टंप्स के ऊपर हाइट थी, हार्ड लेंथ के ऊपर जो बॉल थी वो 1.6 मीटर के ऊपर थी। हाउ डू यू थिंक दैट यू नो बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस विल कोइंसाइड नाउ कि यार क्या हम उस बॉल को तब यूज कर सकते हैं या नहीं? देखिए डिपेंड करता है कि आप किस सरफेस पे खेल रहे हैं। आज वाला पिच ऑफर कर रहा था बाउंस, इसीलिए वो दोनों जो आप उनके मुजरबानी और वो निगारा दोनों सॉरी इफ वी प्रोनाउंस इट रॉन्ग, दोनों ही टॉल फास्ट बॉलर हैं और दोनों ही दे आर फेमस कि उनको वो मुजरबानी, इवन यहाँ पे मुल्तान से हमारे साथ PSL मेरी टीम से खेले, हम इकट्ठे थे, तो वो डेड पिचेस कराची की भी उनको ही यूज टू गेट दैट एक्स्ट्रा बाउंस। तो इस तरह के बॉलर आर डिफरेंट, वो तो आपको पता होता है। एंड देन पिच आज का ऐसा था कि वहाँ पे एक्स्ट्रा वो स्पंजी बॉल, हालांकि दे वर बॉलिंग 130 132, ऐसा नहीं कि 140 वाले थे, बट उनकी जो हाइट है, हाई आर्म एक्शन है दोनों के,
That's why they were getting bounced. तो ये Conditions suited देखें अगेन वही बात कि इट वेरीज टू इंडिविजुअल आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं. पिच आज क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे टर्न है, बाउंस है, स्विंग है, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके यू मेक अ डिसीजन. कैप्टन का और क्या काम होता है? Exactly. एक अच्छे और स्मार्ट कैप्टन और एक एवरेज कैप्टन में यही फर्क होता है कि वो अडॉप्ट करता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड बड़ी जल्दी कर लेता है. कि आपने को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, बट आई थिंक फ्यू की टेक अवेज फॉर आयरलैंड वुड बी कि एक तो उनकी आई थिंक दे लैक प्रीमियम पेस नंबर 1 और नंबर 2 मेरे ख्याल है वो डेथ बॉलिंग उनकी काफ़ी वीक है. इफ दीज आर द टू एरियाज वो उस पर काम कर लें तो आई थिंक आयरलैंड कैन एक्चुअली डू बेटर. डू यू सेकंड दैट? Yes. Yes, thank you so much. 100%. तो आयरलैंड इज द मेरे ख्याल में एसोसिएट मेंबर्स में सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाली ज़्यादा. टीम हाँ, है वो जिसने इतने अरसे से खेल आईसीसी रहे के हैं. इवेंट्स हाँ, ज़्यादा खेले हैं. exactly. बाकी टीमें जो आप देखेंगे ना तो कभी एक क्वालिफाई करती है, कभी दूसरी एसोसिएट करती है, बट आयरलैंड इज ऑलवेज देयर. सो इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आईसीसी के इवेंट्स खेलने का एंड वी एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर. Yeah. Wonderful. वैसे उनकी ग्रोथ की बात कर सकते थे, पर चलें अब ब्रेक की तरफ चलते हैं. एंड व्हेन वी कम बैक वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, सो मेक श्योर यू डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड टू द डगआउट. All right, ladies and gentlemen, keeping the spirit of dugout alive because the match may end, but the conversations are never ending, which is why today we're going to move on towards, आज का दिन जो है वो 4 associate nations, महक, were actually into the grounds as well and playing against their opponents. सबसे पहले मेरे ख्याल है हम जो बात करना चाहते हैं स्कॉटलैंड और इटली के हवाले से करना चाहते हैं. Scotland did get lucky to get into this World Cup in place of Bangladesh. But I think first up, Meg, why don't you take us through the match summary and then we'll move ahead. Definitely. As we can see, Italy was the team जिन्होंने डेब्यू किया था इस वर्ल्ड कप में. उनका पहला वर्ल्ड कप था. Scotland has been there for a while, as we all know. Now, Scotland made 207 for 4. उनके जो main batters हैं, George Munsey and of course Brandon McCullum, their best batters. They really did deliver for them today with the runs. और फिर अगर हम स्कॉटलैंड की बॉलिंग की तरफ चलें तो जो माइकल लीस थे उन्होंने 4 विकेट्स उठाई एंड ही वाज द मैन ऑफ द मैच. ब्रिलियंट बॉलिंग फिगर्स बाय हिम, ओनली कंसीडिंग 17 रन्स. फिर इटली की बात करें, जब वो चेस करने आए थे तो दे जस्ट डिडंट हैव इनफ टू ट्रबल स्कॉटलैंड. एंड उनके कुछ बैटर्स ने अच्छा उनके लिए स्कोर किया, जैसे Benjamin Menente scored half a century, but it just wasn't enough. उनकी अकेली contribution, it wasn't enough to scare Scotland. And of course जो उनके bowlers थे, they also didn't do enough to restrict Scotland from making that high score. अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ. इमाद, मैं आपसे पूछती हूँ, अब जॉर्ज मंजी और अगर ब्रैंडन मैककलन की बात करें तो वो की बैटर्स हैं स्कॉटलैंड के लिए, और आज उन्होंने जब मैटर करता था उन्हें डिलीवर किया. स्कॉटलैंड ने रिडेम्पशन लिया इटली से बिकॉज इटली वाज द टीम जिन्होंने उनको क्वालिफाइंग से नॉकआउट किया था, एंड दैट्स हाउ इटली क्वालिफाइड फॉर दिस वर्ल्ड कप. सो आई थिंक ग्रेट स्टफ फॉर स्कॉटलैंड, बट डू यू थिंक शायद कंडीशंस, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी प्लेड इन दैट ग्राउंड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और इटली का पहला मैच था, तो आपको लगता है क्योंकि वो कंडीशन से सूट हो गए थे तो इसलिए वो शायद they got the better of Italy today? और मुझे तो ये थोड़ा सा अनफेयर भी लगता है. सोचो ना, आप एक टीम को यार हरा के आप क्वालिफाई करके आए 8 में से 11, उसके बाद उसी टीम से खेलना पड़ गया और उसी टीम को उसी टीम ने आपको हरा भी दिया. लेकिन इटली को ये चीज फेवर करनी चाहिए थी, बट अगेन कंडीशंस, you think conditions played a role? सबसे पहले डिसाइड करने दें दोनों. इटली को मुबारकबाद. इटली ने पहली बार वर्ल्ड कप में आना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है. और जितनी उनकी मैनेजमेंट है और जो भी लोग हैं उसमें हमारे एक मोहसिन भाई भी हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं और वो यूएस ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और अभी मेरे साथ बीपीएल भी कर रहे थे. सो उनको बहुत मुबारकबाद. जॉर्ज मुंजी उनका बहुत तगड़ा प्लेयर है स्कॉटलैंड का. मीडियम पेस और स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है. आई होप कि वो कंटिन्यू करे ऐसे, क्योंकि एक ही वो वाहिद ऐसा प्लेयर लगता है मुझे स्कॉटलैंड का जो उनको वो चीज़ दे सकता है जिनकी मिसिंग होती है हर टीम में. वो जो पहले 6 ओवर्स में जो जिस तरह वो दायरा यूज़ करता है, वो बहुत ख़तरनाक प्लेयर है और किसी भी टीम को हराने में आई थिंक इसका सबसे बड़ा हाथ होगा स्कॉटलैंड की तरफ से. सो इसकी जो है मुझे वैसे ही ये बहुत अच्छा प्लेयर लगता है और मुझे लगता है कि ये स्कॉटलैंड के लिए नंबर 1 प्लेयर होगा. और ये काफ़ी एक्सपीरियंस पैक प्लेयर भी हैं. वो टाइम से खेल रहे हैं, दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं. अभी नेपाल में भी थे, फिर एक यूएसए में भी लीग थी, वहाँ पे भी इनकी टीम जीती, बल्कि हम इनसे ही सेमीफाइनल हारे थे. वहाँ पे भी बड़ा अच्छा डिलीवर किया. मैच विनर हैं. जब इनका दिन होता है, जैसे इनका दिन था, तो ये मेड श्योर के ये अकेले ही मैच जितवाते हैं. और इस तरह के जो मैच विनर प्लेयर होते हैं, मे बी वो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं देते, लेकिन जब भी देते हैं दे विन यू गेम्स. तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है. नॉट ओनली अगेंस्ट पेसर्स, ये इंग्लिश बैटर्स आपको नॉर्मली, अब तो खैर
they are good against spinners as well, but he is very good when it comes to sweep, reverse sweep. वो स्पिनर को सेटल ही नहीं होने देते. तो आई थिंक कि इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे माद ने कहा कि अगर स्कॉटलैंड को आगे फर्दर प्रोग्रेस करनी है प्रोग्रेशन के लिए, तो आई थिंक जॉर्ज मंजी इज़ द वन हु होल्ड्स द होल बैटिंग लाइनअप और बाकी उसके इर्द गिर्द खेलते हैं. उसके अलावा ब्रेंडन मैकमुलन जो हैं वो भी ही इज़ वेरी गुड एज वेल. मतलब स्कॉटलैंड इज़ अ गुड साइड. फिर उनके वो बॉलिंग की जैसे वो लीज कैन बैट एज वेल, तो एक अच्छा यूनिट है. And I expect them to do well in coming games as well. अच्छा, अब थोड़ा सा connect करें अगर if Shehzad, if you want to say something before, you can. Exactly. I think that these visuals that we're watching, what we really need to kind of speak about over here is how well they have taken on to their spinners, you know. So I think for him to kind of open his bat, you know, move on, play his shots is something which is interesting to see. Even, you know, so they made sure they're going to target. But इसमें जो वीकनेस नज़र आती है वो इटली की जानिब से नज़र आती है. बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं उनके पास, उतना उनके पास स्किल सेट नहीं है. क्योंकि अगर मैं इन पर्टिकुलर सिर्फ इटली के हवाले से बात करूँ तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इनके साथ अनफॉर्चुनेट रहा जो बर्न्स, जो इनके पहले कप्तान होते थे, वो अब इनके साथ नहीं है. यू नो, सो दे ब्रॉट इन अ न्यू कैप्टन व्हिच इज़ वाइन मेडिसन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मुझे लगता है इनके साथ काफ़ी सारे इश्यूज ज़रूर है. दूसरा जो इटली के साथ एक और मसला आपको नज़र आता है वो ये है कि इटली जो है वो ज़्यादा रिलाई करता है टू मूव ऑन टूवर्ड्स दी बाउंड्री परसेंटेज. और जितने भी हम उनके पिछले गेम्स देखते हैं 50% अबव उनकी बाउंड्री परसेंटेज रही है. बट इट्स नॉट द वे कि जिस तरह आप चेज कर सकते हो या स्कोर कर सकते हो, सिंगल डबल बनाना, वो वाला स्किल सेट मुझे लगता है इटली में शायद अभी भी मिसिंग है. क्वालिफिकेशन करके आना, डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, कहाँ पे मैच हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो यूरोप क्वालिफायर्स खेल के आए थे. हाँ जी. तो अब यहाँ पे आप जब मैच खेलोगे, इंग्लैंड से खेलोगे, वेस्ट इंडीज़ से खेलोगे या ऐसी टीमों से खेलोगे, तो आपको इतनी इजीली बाउंड्रीज तो नहीं खाएंगे अच्छे प्लेयर. सो रोटेट करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक ये वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप एक बार एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो आप अगर अच्छी टीम में वापस जाके आप फिर चेंजिंग करते हैं, आप देखते हैं कि यार मेरे साथ मुझे हमारी टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कैसा खेलना है, किस तरह खेलना है क्वालिफाई करने के लिए आगे. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इटली वर्ल्ड कप में एक प्लेयर है. क्रिकेट का एक और चेंज हुआ है कि यूरोप से एक टीम आई है इटली. सो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा. जैसे नेदरलैंड भी हैं, सो नमीबिया है. सो ये एक फ्लेयर है. क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, दुनिया में हर जगह जा रही है. सो बहुत अच्छी है. सो आई एम सीइंग दीज कंट्रीज इन नेक्स्ट 5 to 10 years कि आपको बिल्कुल क्लोज टू द एसोसिएट और जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उन दोनों का कोई ऐसे डिफरेंस ना हो. T20 में, वनडे में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वनडे लंबी गेम है. सो T20 में आई थिंक बहुत कुछ होने वाला है आगे 5-10 साल में. अच्छा, अगर हम बात करेंगे जो आपने कहा कि 5-10 साल में वो सी देम इवॉल्व अ लॉट. अब वही जो हम बात पहले कर रहे थे, आयरलैंड की बात कर रहे थे, देव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. स्कॉटलैंड भी एक ऐसी टीम है दैट हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे आपने बोला 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, लेकिन 5 वर्ल्ड कप्स में कंसेक्यूटिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सातवां मेरा ख्याल है अभी खेल रहे हैं. हाँ, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से उनकी प्रोग्रेस नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी. तो व्हाट डू यू थिंक द रीजन बिहाइंड दैट इज? देखिए, एक छोटी कंट्री है स्कॉटलैंड, मतलब इतना पूल ऑफ प्लेयर इतना बड़ा नहीं है. दे आर लकी कि दे कैन प्ले द काउंटी क्रिकेट और जो क्लब क्रिकेट है इंग्लैंड में जो होती है, वहाँ पे इनका अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मेरे ख्याल में बड़ा नहीं है अभी. सो ऑब्वियसली जब आप जितना बड़ा प्लेयर ऑफ पूल होगा, जैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में जितना पूल ऑफ प्लेयर बड़ा होता है, वहाँ पे वो लग्जरी शायद हासिल नहीं है. तो इट टेक्स टाइम. एंड देन ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ नॉट ओनली स्पोर्ट देयर. वहाँ पे मेनली तो फुटी खेली जाती है, फुटबॉल आपको पता है. तो यहाँ आपके जब वही अगेन जब पूल ऑफ प्लेयर कम होगा, जब टैलेंट नीचे से प्रोग्रेस करके ऊपर नहीं आएगा, तो ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं या 7 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं. दैट्स एंड देन वो टफ टाइम देते हैं. ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेशन बिल्कुल ही नहीं हुई. मैंने जब पहला स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेला था या उनके प्लेज जो देखे थे, तो आज में काफ़ी फ़र्क है. दे हैव प्रोग्रेस. आपको इमेंस प्रोग्रेशन नज़र नहीं आई जो कि हमें अफगानिस्तान में नज़र आई कि अफगानिस्तान आया और ग्रेजुअली नाउ दे आर अ बिग टीम. मतलब उनको किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे होंगे तो कोई नहीं कहता यार कि ये हारेंगे. मतलब वो इवन मैचेस होते हैं. बट स्टिल स्कॉटलैंड इज़ प्रोग्रेसिंग. ये नहीं है कि प्रोग्रेशन आपको नज़र नहीं आई है. और ये जितने प्लेयर्स की आगे मैंने बात की, आई थिंक दे गुड इनफ. एंड आई होप कि अगर क्रिकेट वहाँ पे और थोड़ा सा इसको डेवलप किया जाए, अपना उनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर आ जाए, तो आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर. थोड़ी बारिश जो है वो कम हो जाए. नहीं, लेकिन स्कॉटलैंड की हाँ वैसे बाय द वे इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी एसोसिएट नेशंस है ना,
اگر وہ اپنی جیسے ہم پی ایس ایل کراتے ہیں اپنی ایک لیگ کرا رہے ہیں نا, تو اس میں کیا ہوگا, اچھے پلیئرز وہاں جائیں گے, ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا, ان کے ساتھ کھیلنا, ان کے اگینسٹ کھیلنا, بہت فرق پڑتا ہے. افغانستان ریڈی ہو جائے, یورپین لیگ آنے یورپین لیگ, افغانستان, اب زمبابوے بھی ایسا کرنے والا ہے. سو آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کیوں پروگریس کی انہوں نے, ایک دم ڈریسٹک چینج آیا, کیونکہ ان کے 8-9 پلیئر تو کھیلتے تھے, تو جب وہ ٹوگیدر وین دے پلے تو ان کو کوئی فرق نہیں لگتا تھا سہیل بھائی کے خلاف کھیلنا یا بابر کے خلاف کھیلنا یا کسی اور پلیئر کے خلاف کھیلنا. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کے پلیئر ڈفرینٹ لیگ میں کھیلیں. اسکاٹ لینڈ کے پلیئر اتنے زیادہ نہیں کھیلتے, منزی کھیلتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر ہم نے دیکھا ہے, لیکن آپ کے اگر خود کی لیگ ہو اور آپ اچھے پلیئرز بلائیں, سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے اور آپ ایوالو کرتے ہیں. سو یہ کرنا چاہیے ہر کنٹری کو. جسٹ کنیکٹنگ دیٹ, مجھے پتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی جو کرکٹ ہے ان کو اتنے زیادہ فائنینشلی بیک نہیں کیا جاتا. آئی بین ٹولڈ دیٹ ان کے فائنانسز کم پڑ جاتے ہیں, دیٹس وائی دے آر ناٹ ایبل ٹو مے بی ڈیولپ ایز مچ ایز دے وڈ لائک. تو وہی آپ کی بات اگر کریں کہ اگر فرانچائز وہ اپنی لیگ کریں تو اس سے ان کو پیسے بھی آئیں گے. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ آئی سی سی کو بھی ان کو مے بی فائنینشلی زیادہ سپورٹ کرنا نیپال از چاہیے؟ ڈوئنگ اٹ. نیپال پہلے اتنا بڑا نہیں تھا, نیپال 3-4 سال سے کرا رہا ہے, اور آج دیکھ لیں کہ کتنا قریب میچ کھیلا, کیونکہ وہاں پہ پلیئر جاتے ہیں کھیلنے. لیگ کرکٹ نا آپ کو بہت جلدی جو ہے نا وہ آپ کو وہ رزلٹ دینا شروع کر دیتی ہے. جیسے نیپال کی عماد نے بات کی, ابھی 2 سیزن ہوئے ہیں ان کی لیگ کو سٹارٹ ہوئے, اینڈ آپ آئی کین کلیئرلی سی کہ میں نے پہلے سیزن میں جو وہاں پہ پلیئرز کو دیکھا, وہی پلیئرز کو جب دوسرے سیزن میں دیکھا تو دے ہیو امپرووڈ اے لاٹ. آپ کا کانفیڈنس لیول بہت, وہ جیسے عماد نے بڑی اچھی بات کی, جب آپ کنٹینیوسلی بڑے پلیئرز کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں نا تو وہ ایک جو فیئر فیکٹر ہوتا ہے یار کہ اتنا بڑا نام ہے, جب آپ ان کے ساتھ کھیلنا ریگولر بیسس پہ شروع کر دیتے ہیں نا تو اٹ ہیلپس, اور آٹومیٹیکلی آپ کا. دوسرا اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان ایسوسیٹ ممبرس کو اپرچونٹی نہیں ملتی فریکوینٹلی کھیلنے کی اگینسٹ بگر نیشنز, جو کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کے اگینسٹ. اگر وہ سیریز ان کو ملنا شروع ہو جائیں, آئی تھنک کہ اس میں بھی جو پلیئرز کی ایوالو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ فرسٹ کلاس میں بھی آپ کے آنا چاہیے. سہیل بھائی, ہم جب کھیلتے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ یا پینٹینگولر ہوتی تھی, سہیل بھائی آتے تھے, شعیب بھائی آتے تھے, یوسف بھائی آتے تھے, ہماری طرف سے کھیلتے, تو میں تو ایز اے ینگسٹر انہیں دیکھتا تھا کہ ان کا کیا ہیبٹ ہے, کیا کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پرفارمنس ہو یا نہ ہو, ان کا ریئیکشن کیسا ہے. سو آئی تھنک یہ ہماری کنٹری میں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جب پاکستان سے کھیل رہے ہوں تو آپ جا کے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں تو لڑکوں پہ امپیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے, سیم ایز لیگ کرکٹ. ایگزیکٹلی. اور جہاں پہ ہم نے اس حوالے سے بات کی, میرے خیال ہے اسکاٹ لینڈ نقشے میں انگلینڈ کی زیادہ نزدیک ہے دین آئرلینڈ. آئی تھنک یو کین, آئرلینڈ زیادہ نزدیک ہے, آئرلینڈ زیادہ نزدیک ہے. آئی تھنک وہ بس پانی ان کو سیپریٹ کر رہا ہے, بٹ اٹ از کلوز. سو آئی تھنک انڈیویجولی اگر پلیئرز بہتر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نہیں, ایکچولی obviously انگلینڈ جو ہے وہ اس کے بارڈر پہ ہے, لیکن the Irish are closer to نہیں تو اسکاٹ لینڈ بورڈ کو آپ ایڈوائزر ایز ایڈوائزر لگ سکتی ہیں. آپ کو کرکٹ کا اتنا پتہ ہے. الحمدللہ. I mean اور کیا ہوتا ہے, آپ ان کو یہ میسج دے دیں کہ مجھے ایز این ایڈوائزر لگا دیں, یہاں پہ ہم دے دیں نا, آپ کی بات کو ہم شیور سنیں گے تو آپ کو. لیکن جہاں پہ لیگ کرکٹ کے حوالے کے نا تو بھجوا دیجیے. لیکن جہاں پہ لیگ کرکٹ کے حوالے سے بات کی, میں اٹلی کو بھی یہاں پہ شامل کروں گا کہ ان کے جو اسمٹس ہیں, اور یہ ہیری مننٹی جو ہے, یہ ہیری جو ہے یہ بگ بیش بھی کھیل چکے ہیں اور جے اسمٹس بھی لیگس کھیلتے ہیں. سو آئی تھنک دے کوڈ ایکچولی کنٹریبیوٹ فار دیئر ٹیم اینڈ موونگ اہیڈ. اٹلی, فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز for your maiden World Cup as well. With that, we're actually going to head out towards a short break. Scotland won by 73 runs. That's a massive win against Italy. I mean, Scotland could have gone a little easier, but we need to head out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back on the dugout. Go ahead. All right. Okay, now we are back on the dugout that you can watch us on Jio Super, Tamasha, and of course Michael. اور اب ہم بات کرتے ہیں جو آج کا آخری میچ تھا, وہ تھا of course Second last. Yep. Sorry, second last match. بہت زیادہ میچز ہو گئے, اس سے تھوڑی کنفیوژن تو چل رہی ہے. We have Oman versus Zimbabwe, and why don't you go on and give us the match summary? Exactly. So if we are to kind of speak about Oman versus Zimbabwe, I think it was very obvious that Zimbabwe is actually going to kind of dominate Oman. And speaking about it, I think what Zimbabwe did was that they initially, first of all, they made sure that they not allow Oman to kind of score quite a lot. So there was only 103, which was actually posted by them. It was Sufyan and Binayak who actually had a partnership of more than 50 runs, I think, if I'm not wrong. On the other hand, if you are to speak about Zimbabwe, their bowlers have been phenomenal. جو میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ یار وہ جو ہارڈ لینتھ کے اوپر بالنگ کر رہے ہیں, اس کی ایٹ اسٹمپس 1.6 میٹر کی ہائٹ ہے, اینڈ ارلی آن یو کی ناٹ ٹرائی all of those shots, which is why they got early wickets as well. نگراروے جس کی بات کی 3 وکٹس لیں, پھر بریڈ ایونز نے 3 وکٹس لی, سکندر رضا نے 1 لی, اور ٹوٹلی میرے خیال ہے سکندر کے اوپر ریبلٹی بھی زمبابوے کی
کافی زیادہ رہی ہے. مین آف دا میچ جو بلیسنگ مظہر ربانی رہے, 3 وکٹیں حاصل کی انہوں نے 16 رنز دے کر, اور دوسری طرف جو ہے وہ برائن بینٹ نے 48 رنز بنائے 36 گیندوں کے اوپر 106, اور 2 وکٹس جو ہے اس کا صرف نقصان ہوا انہوں نے زمبابوے کو. سو زمبابوے لکنگ ونڈرفل. احمد یس, زمبابوے بہت اچھی سائڈ ہے T20 کی. آئی تھنک ان کے کافی پلیئرز ہیں جا کے کھیلتے ہیں لیگ کرکٹ. سکندر ان کا سب سے بڑا پلیئر ہے اس ٹیم میں. آئی تھنک سکندر رضا, اگر ان کو سپر 8 میں جانا ہے, سکندر رضا کو ایک گیم کسی ٹیم کو اکیلے جتانی پڑے گی, کیونکہ فاسٹ بال ان کے پاس ہیں. لیکن سکندر رضا نے ابھی ایسے T20 میں بہت اعلیٰ بالنگ کی ہے. برینڈن ٹیلر کے آنے سے بہت فرق پڑے گا, کیونکہ وہ اسپنرس کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, اور جہاں پہ بھی اس طرح کی کنڈیشن جو اسپن ڈومینیٹنگ کنڈیشن, تو برینڈن ٹیلر ایسے پلیئر ہیں, اور رائن برل, وہ 2 ایسے پلیئر ہیں. تو ان کی آئی تھنک بیسس کور ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ 140+ اگر بالرز ہیں کسی ٹیم کے پاس اور مسٹری ہے, پھر پھنسیں گے وہ لوگ. اچھا, زمبابوے کی بات کریں تو پچھلے ورلڈ کپ کا جو ایڈیشن تھا اس میں انہوں نے انفارچونیٹلی کوالیفائی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے آسٹریلیا کو اپسیٹ کر دیا تھا. سو دیٹ واز, آئی مین اٹس اے بٹ لائک یو ان کی جو پرفارمنسز رہ چکی ہیں. لیکن اب آج کی آپ نے جس طرح بات کی تھی, ان کے جو بولرز تھے, یو نو دا کنڈیشن سوٹڈ دیم, ان کے باؤنسرز ہو رہے تھے, اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ وکٹس لے سکے تھے. لیکن اب آگے جب ٹورنامنٹ جائے گا اور جب اوبیسلی کنڈیشنز اس طرح نہیں رہیں گی, تو تب زمبابوے کو یو نو آگے کے لیے جب وہ سوچیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, زمبابوے کا ایشو جو رہا ہے وہ بیٹنگ ہے ان کی, کیونکہ دے آر ہائیلی ڈپینڈنٹ آن 2-3 پلیئرز, جس میں سکندر رضا مینلی ہیں. ان کی فارم کے اوپر بہت زیادہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں. وہ جو ٹاپ 3 ہیں وہ اتنے تگڑے نہیں ہیں, وہ دے کیپ آن چینجنگ دیم, اور لوور مڈل آرڈر میں بھی ان کے پاس اتنے تگڑے اسٹرانگ ہٹر نہیں ہیں. سو ہیویلی ریلائنگ آن 1 پلیئر جو ہے نا وہ آپ کو کاسٹ کرتا ہے. جب اگر اس کا آف ڈے ہوگا تو پھر آپ کے رزلٹ اس طرح کے آپ نہیں پروڈیوس کر سکیں گے. دیٹس وائی دی پرفارمنسز آر اپ اینڈ ڈاؤن, کیونکہ جب سکندر رضا پرائم فارم میں ہوتا ہے تو دے ڈو ویل ان دا کمپٹیشنز, وہ چاہے ایسوسیٹ کے اگینسٹ ہو, ایون بڑی ٹیم کے اگینسٹ بھی. جب سکندر, ہمیں بھی انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا یہاں کے زمبابوے نے, ہمیں ایک میچ بھی ہم سے جیتے تھے. وہ اکیلے ہماری لیگ کرکٹ کے اندر بھی ہمیں ٹف ٹائم دے دیتے ہیں. تو بٹ مجھے سکندر رضا کو دیکھ کے جو پچھلے 2021-22 کے بعد جو سکندر رضا کی پرفارمنسز آئی ہیں, مجھے اتنی خوشی ہوئی, کیونکہ جب میں CPL کھیلتا تھا تو یوز ٹو کم, اور وہاں پہ وہ عمران طاہر کے ساتھ وہ بات کرتے ہوتے تھے, اور جو عمران طاہر سے میرے خیال میں اور نارائن سے جو سیکھا ہے انہوں نے, کیونکہ وہاں پہ ٹرینیڈاڈ, اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکشن بھی کاپی بھی نارائن کا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ سکندر رضا کی وہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ اپنی گیم کو ایوالو کر سکتے ہیں. سو سکندر رضا نے جس طریقے سے 3-4 سالوں میں ایوالو کی اپنی گیم کو, آئی تھنک اٹس ٹرمینڈس. تھینک یو سو مچ سہیل بھائی. اب آپ دیکھیں, مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی ہے, مجھے ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد شاید اماد نہیں بول سکے, یا میڈیا نے ڈفرینٹلی اس کو پورٹری کیا ہو. اماد, آج آپ اس موقع پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, نہیں, یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو سکندر رضا کی اسٹیٹمنٹ تھی, میں ان سب کو پہلے بھی بتا چکا, اور وہ میں نے سکندر رضا کے اوپر رکھ کے نہیں بات کی, میں نے ایک جنرلی ایز اے پروفیشنل بات کی تھی. اور سکندر رضا کو میں 2015 سے جانتا ہوں, میرا بڑا اچھا دوست ہے. اور اس کے بعد میں نے اسے کہا بھی, میں نے کہا بھائی آپ کے اوپر نہیں تھی. اس نے کہا اماد بھائی کوئی ٹینشن نہیں, مجھے پتا ہے آپ نے کس اس میں کی تھی. سو جس طرح آپ پورٹریٹ کرتے ہیں اس طرح مت کریں. میں نے ایز اے پروفیشنل بات کی تھی. اگر ہم یہاں بیٹھے تو ہم پروفیشنلی ہر پلیئر کو ڈسکس کرتے ہیں, ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پرسنلائز کسی کے ساتھ نہیں ہوتے. میں پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہوں, اور اب نہ کرنا بھائی. اینڈ فائنلی دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اور مجھے لگا کہ چونکہ اب زمبابوے کی بات کر ہی رہے ہیں, سو آئی تھنک زمبابوے فار them to qualify for the World Cup, they had a massive and a wonderful campaign. 16 games سے 15 گیمز وہ جیتے. انفارچونیٹلی جو ٹرائی نیشن سیریز وہ یہاں کھیل رہے ہیں اس کے اندر نہیں وہ اس طرح سے جیت پائے. ایک ہی میچ میرے خیال ہے شاید زمبابوے اپنے نام کر چکا. میں ذرا اب عمان کی بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. زمبابوے ایوری بڈی از ویری ویل اویئر آف دیٹ. عمان آئی تھنک لاسٹ فیچرڈ ان دی T20 ورلڈ کپ ان 2016. ان کے جو ریگولرز ہیں, اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں, آئی تھنک جتیندر سنگھ یا شاہ فیصل جو ان کے بالر ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اور ہاؤ ڈو یو تھنک عمان نیڈس ٹو پلان اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب مختلف نیشنلٹیز کے کھیل رہے ہیں. اب وہ جو ایک نیشنلٹی کے تھوڑے سے تگڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اوپر چلے جائیں, جو دوسری نیشنلٹی والے ہوتے ہیں آپ نیچے آ جائیں. کیا یہ المیہ رہتا ہے GCC کنٹریز کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں ہوتا ہے, کیونکہ جس طرح UAE نے پروگریس کی ہے, یہی سیم بات لیگ کرکٹ UAE میں ہوئی ہے. ILT ہو رہی ہے, T10 ہو رہی ہے, ان کے کافی پلیئرز اب کھیل رہے ہیں. آپ دیکھیے گا UAE کے میچز میں آئی ایم پریٹی شیور UAE کافی اچھا پرفارم کرے گا. کافی اوریجن جو ہے وہ ایشین ہوتے ہیں, پاکستان اور انڈیا سے بہت زیادہ ہوتے ہیں.
سو سیم عمان کا بھی ایسا ہی ہے. سو آئی تھنک پروگریس تو ہے, آپ ورلڈ کپ کوالیفائی کر چکے ہیں, آپ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن آپ کو تگڑا کھیلنا پڑے گا, اور آپ کو اپنی کرکٹ کو جو ہے وہ لیگ کرکٹ کو اسپیسیفکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا اپنی کنٹریز میں. عمان ہیز گاٹ لاٹ آف منی, تاکہ بہتر ہو جائے. آئی ایم شیور عمان کا جو میجر ایشو ہوا نا پچھلے آپ نے 6-8 مہینے پہلے سنی بھی ہوگی کہ جو ان کے ایک پوری ٹیم بنی ہوئی تھی پچھلے 3-4-5 سالوں میں, انہوں نے ایک تگڑی ٹیم بنائی جس نے اچھی پرفارمنسز دینا شروع کی. اس میں سے 8 سے 10 پلے جو ہیں وہ بالکل ابھی ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. یہ جو بھی آپ نے مینشن کیا نا کہ وہاں پہ ایشوز یہ کہ جس کنٹری کے یا جس اوریجن کے پلے تھوڑے تگڑے ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کو سائیڈ لائن کرنے, وہاں پہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایشو ہوئے آن پیسوں کو لے کے, اور انہوں نے کھلاڑی کو واپس بھیج دیا, تو وہ پوری کی پوری ٹیم کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا. تو جب آپ کی پوری ٹیم ایک ایسی کنٹری جس میں آلریڈی لمیٹڈ ٹیلنٹ ہے, مطلب وہ کوئی عمان کی کرکٹ کو ان کا اپنا سپورٹ نہیں ہے, وہ جو جتنے باہر سے لوگ امیگرینٹ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہی کرکٹ کھیلتے تھے, تو اس میں سے بھی جب آپ مین پلیئرز کو اپنے 8-10 پلیئرز کو سائیڈ پہ کر دیں گے تو پھر نئے پلیئر ان کو آ کے ریپلیس کریں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک کائنڈ آف ان کی سیکنڈ ٹیئر کی ٹیم اب کھیل رہی ہے, تو دیٹس وائی وی سی ڈکلائن ان دیئر پرفارمنسز. ورنہ they were competitive. ایسوسیٹ کے لیے تو they were good team, وہ یو اے ای کو بھی نہیں جیتنے دیتے تھے جب وہ لڑکے کھیل رہے تھے, اور اگر کوالیفائی کرتے تھے تو لگتی تھی ایک ٹیم کھیل رہی ہے, جو کہ آج ہمیں نظر نہیں آئی. اس کا ریزن یہی ہے کہ جو ان کے پوری سیٹ آف پلیئر تھا, پوری ٹیم تھی, اس ٹیم کو نکال دیا گیا. And I think this is where Oman actually needs to learn as well. اور صرف میں شاید بہت زیادہ ان کے اسٹرکچر کے حوالے سے تو نہیں بات کر سکتا, لیکن یہ بھی شاید مجھے لگتا ہے ایک غلط اندیہ ہے کہ جی یہ جی سی سی کنٹریز کے بعد بہت سارے پیسے تو یہ شاید وہ کر سکتے ہوں گے شاید, لیکن کرکٹ میں نہیں خرچ ہو رہے, کیونکہ کلب کرکٹ میں نہیں ہوتے. ہاں, میں کلب کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کروں, آئی واز ٹریولنگ ونس, تو مجھے ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی جو کہ کلب کرکٹ کراتے ہیں, اون بھی کرتے ہیں وہاں پہ ٹیم کو. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی کیا ڈیلی ہے جو آپ پلیئر کو دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا 100 درہم یا 80 درہم دے رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو بہت کم نہیں کہہ رہا یار, دس از واٹ وی کین ایکچولی افورڈ ایز آف ناؤ. اچھا, وہاں پہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ وہاں پہ اب تو کئی بورڈز نے وہ کانٹریکٹ دینے شروع کیے ہیں, بٹ جتنے بھی ایسوسیٹ ممبرز ہیں ان کے جتنے بھی کرکٹرز ہیں فار لیونگ دے ورک, وہ جابز کرتے ہیں, اور کرکٹ وہ اپنے وہ پیشن کے لیے یا اپنا ایک جو شوق ہے اس کی وجہ سے وہ کھیلتے ہیں. اور جب تک آپ پروفیشنلزم نہیں لے کے آئیں گے, آپ ان کو جابز کرکٹ میں نہیں دیں گے, تب تک آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے انگلینڈ کو ہرا دیں بھائی, وہ مطلب یا پاکستان کو ہرا دیں. آپ ایک پروفیشنل کے ساتھ پارٹ ٹائمر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن یو ایس اے نے تو پچھلی دفعہ پاکستان کے خلاف کیا تھا. نہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیں نا, اب کرکٹ یو ایس کی اگر آپ دیکھیں, کرکٹ اگر آپ یو ایس کی دیکھیں گے نا, تو یو ایس میں اب یہ پروفیشنلزم آنا شروع ہو گیا ہے. وہاں پہ پلیئرز آر ارننگ منی. یہ جو ہمارے کنگز مین والوں نے ٹیم لی ہے نا, وہاں پہ انہوں نے ٹیم رکھی ہوئی ہے, وہاں پہ انہوں نے ان کو باقاعدہ سیلری رکھی ہوئی ہے, اکاموڈیشن ان کو ملتی ہے, 15-20 پلیئر وہاں پہ ہیں, اینڈ دین فیو ادر کلبز. اور وہاں پہ کلب کرکٹ جو ہوتی ہے وہاں پہ بھی 3-4 دن کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ کو یو گیٹ 3-4-5,000 ان دوز 3 days. تو وہاں پہ بھی جاب کرتے ہیں, بٹ بہت پیسہ بہتر ہو گیا وہاں پہ. میجر لیگ آ گئی ہے, دین بیچ میں وہ اور بھی لیگز ہو رہی ہیں وہاں پہ, کافی بہت کرکٹ ہے نا وہاں پہ, بہت زیادہ کرکٹ ہے. یو کانٹ کمپیئر یو ایس اے, اور یو ایس اے کی پرفارمنس اسی لیے بہتر گئی ہے. ہاں, تو ورلڈ کپ بھی ہوا تھا. ایگزیکٹلی. اور عمان جو ہے اس ٹائم میرا خیال ہے جتنے بھی ہم نے ریسنٹ ڈیبیکلز دیکھے ہیں یا میچز دیکھے ہیں, اس میں سب سے ویکسٹ لگی. بٹ اس کے بعد جو اگلا گیم آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تماشا سرٹنلی از ساؤتھ افریقہ ورسز کینیڈا. تو آپ میرے خیال ہے ہم ذرا اپنی پریڈکشنز کی جانب بڑھتے آؤ, یا ذرا ہمیں پریڈکشنز کی طرف لے آؤ ذرا. تو اس میں ویسے کوئی خاص پریڈکشن تو نہیں, پہلے میں پک کر لیتا ہوں. آپ پہلے کینیڈا پک کر لو تاکہ موبائل ہمیں ملے. آپ کینیڈا بول دیں. میں کینیڈا, وہ ہمیشہ بولتے ہیں نا. چلو جی کینیڈا لے لیتے ہیں باس. کیونکہ نیپال بھی کل جیت سکتا تھا ایک موقع پہ. میں اماد سہیل بھائی ٹی وی کے سامنے کھڑے تھے, میں نے کہا 9 رنز رہ کے شاید ہو سکتا ہے. فلوک لگنے کے بھی پوائنٹ 2 ہی ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں, آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ 10 پوائنٹ مل جائیں گے, 10 نہیں ملنے آپ کو. یو نیور نو, کینیڈا کی ٹیم بھی پاکستانی اور انڈین سے بھری ہوئی ہے, سو یو نیور نو. میں آئی نو بھری ہوئی ہے, لیکن نو چانس. ہمارے پاس ہیں جو کینیڈا کے بارے میں بہت بہترین بتا سکتے ہیں. ہاں, انسائیڈ آپ کو. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ساؤتھ افریقہ. زیادہ خاص نہیں, لیکن کل کے گیمز کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں, پریڈکشن لے لیتے ہیں. کل
वंस अगेन पाकिस्तान के लिए वो गेम है जिससे मैं कोशिश करूंगा या मैं चाहता हूं या मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान वो जो एक डेंट पड़ा था हमें उससे अब वापस निकल सके बिकॉज पाकिस्तान विल बी फेसिंग इन द ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लुक्स लाइक पाकिस्तान इज इन ग्रेट शेप. लेट्स सी व्हाट इमाद हैज टू से अबाउट पाकिस्तान एंड कल यूएसए. ये जो है ना कि यूएसए ने हराया था कल, आई थिंक पाकिस्तान प्रॉपर बदला लेगा, जवाब आपको दिखाएगा. देगा. अच्छा जी. वन साइडेड. One-sided? बता दिया वन साइडेड. इमाद is One sided, super जी सोहेल भाई, one enthusiastic sided. about that. वन साइडेड तो मैं नहीं कहूँगा नहीं क्योंकि Okay. दे लुक वेरी गुड टीम बट ऑब्वियसली पाकिस्तान should win and Pakistan will win of course. All right, Pakistan should win. My जी. turn? Yeah. अच्छा, अब पाकिस्तान की हमने परफॉर्मेंस नेदरलैंड्स के खिलाफ देख ली थी. ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान को ही बैक कर रहे हैं, हमारी दुआएं उम्मीदें सब कुछ पाकिस्तान के साथ है, लेकिन यूएसए ने इंडिया जैसी टीम को काफ़ी टफ टाइम दिया था Yeah. इन दैट फर्स्ट मैच. Yep. बट ऑफ कोर्स मेरा दिल पाकिस्तान के साथ है, सो पाकिस्तान. All right, दिल पाकिस्तान के साथ लो जी, होता कल है. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच भी मैंने आपको बता देता हूँ. कौन? मेरा प्लेयर ऑफ द मैच है सलमान अली आगा. क्या वजह क्या है? कप्तान. अच्छा इसकी क्या वजह है कि आप उनकी उनके बॉलिंग लाइनअप स्पिनर्स, देख के कह हाँ, रहे उनके हैं? स्पिनर्स हैं और सलमान मुझे लगता है कि अच्छा खेल लेगा. डोमिनेट करेगा उनको. Exactly, well that's Then wonderful. अच्छा जी, we hope so. so सब everybody is with Pakistan. Yeah. I think इसमें मुझे फिर कहते हुए तो नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन इस दफा मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा अपना मुल्क है. Would want to back them over here. दूसरी जो गेम है is going to be in between Namibia versus Netherlands. That's going to be a quite tricky game मुझे लगता है. नेदरलैंड, आई थिंक नेदरलैंड अच्छी टीम है. नमीबिया भी अच्छी नमीबिया टीम भी है. मुझे नेदरलैंड लगती है कि आपको Netherlands लगती है? I'll go with Namibia. You'll go with Namibia, okay. And just to maybe, yeah, I'll go with Namibia, so you can go with Netherlands. नहीं यार, Just to यार even मैं- things out. मुझे अपनी मर्जी तो कर लेने दो ना. करने दो. So, How I many think I'm going to go with Netherlands as well myself. Gee, one last game which is going to take place tomorrow, and it's going to be New Zealand versus United Arab Emirates from Group D. It's going to happen in Chennai. Gee, न्यूजीलैंड. New Zealand. UAE ले लो. New Zealand. वैसे UAE New कोई तो Zealand ले is ले. there. New Zealand ही है इसमें तो New Zealand. मेरा ख्याल है UAE might not even stand a chance, but if it's a close call, I think it's going to be a win for लेकिन you यूएई can't इतना rule वन the- साइडेड हाँ. मुझे नहीं लग रहा गेम. UAE भी बुरी टीम बहुत, आप एसोसिएट टीम्स को रूल आउट नहीं कर सकते इस वर्ल्ड कप में जो हुआ है किसी शुरू भी में, वर्ल्ड कप में उसके नहीं कर बाद- सकते. 70-30 न्यूजीलैंड. एक राणा हो किसी टीम के पास, टीम किधर पहुंच जाती है. मेरा ख्याल है मसला नहीं. But thank you so much, ladies and gentlemen, for being with us. Thank you so much, Sohail bhai. Thank you so much, Mehak, for being a Thank wonderful co-host. Thank you so much, Imad you. bhai, for being a wonderful, co-host as well, and then an analyst. And then, I'm really sorry for putting you on the spot at times. I know I do No, that, no, no. but I think it serves the purpose of having that opportunity where you kind of get to clear the air. For people who are out there, ladies and gentlemen, please make sure that you keep on streaming Tamasha and Maiko, and it's because of the fact that we bring you all the non-stop action from the ICC Men's T20 World Cup 2026 right to your mobile phones or probably your television screens. Until next time, look out for yourselves. We'll see you tomorrow because we are the Dugout. Dugout. Bye. Welcome to the Dugout.